Hello friends, Academic Zone welcomes you and today we are going to discuss about Noam Chomsky's Universal Grammar, a very renowned prominent linguist of today's era, Noam Chomsky, who propounded a particular kind of grammar of language that is universal grammar. What is universal grammar? Noam Chomsky says the child has in his brain a particular grammar and this grammar is applicable to all the languages of this world and it is innate. It is innate. So let's talk. Noam Chomsky, the great linguist. If children learn language by conditioning and imitation, why do they say things they have never heard before? Very first question we are raising in the very beginning of this lecture. Why can adults make completely novel sentences? Means Noam Chomsky is raising banner against the prevalent second language acquisition theory and he is propounding his own theory about the universal grammar, the nature of language and language acquisition. किस तरीके से हम लैंग्वेज सीखते हैं. What is universal grammar? It is a theory that suggests that some rules of grammar are hardwired into the brain and manifest without being taught. It means that एक बच्चा ग्रामर के यानी कि लैंग्वेज के कुछ फंडामेंटल्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड होते हैं उसके ब्रेन में बिना सिखाए. ऑलरेडी वो उनके साथ होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट वी सेज दैट कि इट इज इननेट. यूनिवर्सल ग्रामर जो कि आपका नोम चोमस्की का कॉन्सेप्ट है वो इसके बारे में ऐसा बोलते हैं. What are the arguments about universal grammar? Poverty of stimulus, constraints and principles cannot be learned, patterns of development are universal. ये arguments universal grammar से related दिए जाते हैं. Try to define it. UG means universal grammar or it is also known as mental grammar. Very important it is from linguistic point of view and so many times we find question from Noam Chomsky in UGC NET also. Is a theory in linguistics proposing that the ability to learn grammar is hardwired into brain. Already we have talked about it. As opposed to other grammars. Universal grammar is totally opposed from other kind of grammars. वो कौन सी ग्रामर है जिनके टोटली उलट है. फॉर एग्जाम्पल प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, पेडागोजिकल. यूनिवर्सल ग्रामर इज टोटली opposite to prescriptive, descriptive and pedagogical grammar. So this theory suggests the linguistics ability manifests life itself without being taught, that there are properties that all natural human languages share. ये एक बड़ी बात कह रहे हैं. We are not talking about a particular language या एक किसी particular language की ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं. एक यूनिवर्सल ग्रामर की बात कर रहे हैं जो रूल्स रेगुलेशन दुनिया की हर लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होते हैं. एक ऐसा जो है ग्रामर की बात नोम चोमस्की कर रहे हैं. इट्स अ मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन to determine precisely what abilities are innate. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. and what properties are shared by all languages. ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस पूरे लेक्चर में. पूरा वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा. Theory of universal grammar proposes that if human beings are brought up under normal condition, then they will always develop language with a certain property. यूनिवर्सल ग्रामर क्या कहती है कि नॉर्मल कंडीशंस में एक बच्चे को जब हम लुक आफ्टर करते हैं, वो ग्रो करता है, तो वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑटोमेटिकली सीखता है. इनेट है ये उसके लिए. फॉर एग्जाम्पल distinguishing nouns from verbs, distinguishing functional words from lexical words.
बिना सिखाए, हमको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस, स्वतः अपने आप होता है एक बच्चे में। यही यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं इसको, नोम चोम्स्की की। हम बिना सिखाए हुए भी एक बच्चा नेचुरली लैंग्वेज सीखता है, ये इननेट है, उसके अंदर इनबिल्ट है ये क्वालिटी। एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टी ए इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, कि द चाइल्ड लर्निंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंग्वेज विदाउट बीइंग टॉट बाय समवन, तो दिस लैंग्वेज इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रामर। ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है जो बच्चा स्वतः ही सीखता है। अब इस एग्जाम्पल के दम पे हम क्या कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर वुड बी इननेट प्रॉपर्टी, जैसा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इट इज एन इननेट प्रॉपर्टी इन द वर्ड्स ऑफ नोम चोम्स्की ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट कोजेज इट टू पोजिट अ डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। ऑलरेडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर माइंड के अंदर ऑलरेडी है हमारा जो इन चीजों में डिफरेंशिएट करता है बिना किसी की टीचिंग के भी, बिना किसी के सिखाए भी। अब चोम्स्की जो है इसके अंदर जो 3 फैक्टर्स मानते हैं वो कौन से हैं? एविडेंटली डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन द इंडिविजुअल मस्ट इन्वॉल्व 3 फैक्टर्स। ये क्वेश्चन बनता है, ये कौन से 3 फैक्टर्स हैं? जेनेटिक एंडोमेंट, और जनरेटिव ग्रामर पे बहुत काम है नोम चोम्स्की का। इट सेट्स लिमिट्स ऑन द अटेनेबल लैंग्वेजेस, देयरबाय मेकिंग लैंग्वेज एक्विजिशन पॉसिबल। जेनेटिक एंडोमेंट ये क्या है? सेट्स लिमिट्स ऑन द अटेनेबल लैंग्वेज, किन किन लैंग्वेज को हम अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, यानी कि जैसे हमारे यदि मदर टंग की बात करेंगे, किसी का हिंदी हो सकता है, तमिल हो सकता है, तेलुगु हो सकता है, सेकेंड लैंग्वेज माइट बी इंग्लिश, तो इट इज लैंग्वेज एक्विजिशन को क्या करता है? पॉसिबल बनाता है। द सेकेंड फैक्टर इज एक्सटर्नल डेटा converted to the experience that selects one or another language within a narrow range. Principles not specific to FL, factor of language, function of language, sorry। तो ये 3 फैक्टर जो है ये मानते हैं, नोम चोम्स्की इनको मेंशन करते हैं। जो फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज है, whatever properties of the brain cause it to learn language. Factor 1 universal grammar in the first theoretical sense, and factor 2 is the linguistic data to which child exposed. पहला जो उसने सीखा, और दूसरा अब जो अट्रेंसीज है जो सीख रहा है उनको लिंगुअल फ्रेजेज में बदल के बोल रहा है। तो इट इज यू कैन से कि लिंग्विस्टिक डेटा, जब वो नाउन प्रनाउन इनमें डिफरेंशिएट करने लगता है तो इट इज लिंग्विस्टिक डेटा। पावर्टी ऑफ द स्टिमुलस, क्योंकि शुरुआत में ही हमने 3-4 फैक्टर की बात करी थी। तो बच्चे जब है, चिल्ड्रन हियर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस, दे आर एबल टू एब्स्ट्रैक्ट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द लैंग्वेज, प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सेंटेंसेस विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। इनपुट अनग्रामेटिकल और आउटपुट है ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल, यानी कि सीखता है और उसके बाद धीरे धीरे जो है उसकी वोकैब डेवलप होती है, और ग्रामेटिकली भी चीज़ों को वो डिफ्रेंशिएट करने लगता है कि कौन सा स्टेटमेंट में क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट में अफर्मेशन है, नाउन प्रनाउन उनमें डिफ्रेंशिएट करने लगता है। इट इज नेचुरल प्रोसेस। देयर इज एन आर्टिकल रिटन बाय नोम चोम्स्की, द फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज इट, who has it, and how did it evolve? Very popular article written by Noam Chomsky. Hauser and Fitch present the 3 leading hypotheses for now how language evolved and brought humans to point where we have a universal grammar. Evolution के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं ये वो आप देख सकते हैं। हमने लिया है इसका जो आर्टिकल उनका है, आप यहाँ से इसको डिकोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इफ अ मार्शियन ग्लैंस्ड आवर प्लैनेट इट वुड बी स्ट्रक बाय वन, यानी कि पढ़ा भी जा सकता है यदि आप गौर करके पढ़ोगे तो।
ये तो सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लिखा है, यहाँ पर जो है इमेज इंसर्ट की है। 3 हाइपोथेसिस कौन सी है? पहली है, क्या है ये? फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इन ब्रॉड सेंस, FLB स्टैंड्स फॉर फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इन ब्रॉड सेंस इज स्ट्रिक्टली होमोलोगस। होमोलोगस है, जो है रिजेम्बलेंस है टू एनिमल कम्युनिकेशन। पहले वाले में एनिमल ह्यूमन दोनों में क्या होमोलॉजी है, होमोलोगस है, और उसमें आप कह सकते हो कुछ रिजेम्बलेंस है। दिस मीन्स दैट होमोलोगस एस्पेक्ट्स ऑफ द फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज एग्जिस्ट इन नॉन ह्यूमन एनिमल्स ऑल्सो, ह्यूमंस एज वेल एज इन नॉन ह्यूमन, जो है आप जिनको हम एनिमल्स कह सकते हैं, उनमें भी ये होता है। और दूसरा है, FLB इज डिराइव्ड यूनिकली ह्यूमन अडेप्टेशन फॉर लैंग्वेज। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इन ब्रॉड सेंस जो प्यूरिफाई फॉर्म है, रिफाइंड फॉर्म है, वो सिर्फ किसके पास है? वो ह्यूमन के पास है। यूनिकली ह्यूमन अडेप्टेशन फॉर लैंग्वेज, ह्यूमन अडेप्ट करते हैं। दिस हाइपोथेसिस बिलीव दैट इंडिविजुअल ट्रेट्स वर सब्जेक्ट टू नेचुरल सिलेक्शन केम टू बी वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर ह्यूमंस ओनली। अब यहां से ह्यूमन और नॉन ह्यूमन में क्या है, डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं हम लोग। और जो थर्ड नंबर है, FLN फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इन द नैरो सेंस, इट इज स्पेशली टू ह्यूमंस। वाइल मैकेनिज्म ऑफ FLB आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस, लेकिन जो कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म ऑफ रिकर्सन इज रिसेंटली evolved solely in humans only. This hypothesis which most closely aligns to the typical theory of universal grammar championed by Chomsky. ये hypothesis है, different hypothesis है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब चोमस्की की थियरी क्या कहती है? Chomsky argued that the human brain contains a limited set of rules for organizing language. Limited set of rules है लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और इसका वो काम किस तरीके से करता है? ऑल लैंग्वेजेज हैव अ कॉमन स्ट्रक्चरल बेसिस। चोमस्की कहते हैं कि सारी लैंग्वेजेज में एक कॉमन स्ट्रक्चर भी होता है, और उसी कॉमन स्ट्रक्चर को ये नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। चोमस्की बोलते हैं, आई थिंक यट द वर्ल्ड थिंक्स इन मी, exemplifying his belief that since humans are natural beings and have undergone evolution, that universal grammar is a biological, क्योंकि उन्होंने क्या बोला इसको? innate बोला है, तो it's biological evolutionary trait common to all humans, इसीलिए उसको यूनिवर्सलिटी बोलते हैं। जो स्पीकर्स हैं और जो अपनी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं, महारत हासिल करते हैं, उनको पता है विच एक्सप्रेशंस आर एक्सेप्टेबल इन देयर लैंग्वेज एंड विच आर अनएक्सेप्टेबल, किनको एक्सेप्टेंसी है और किनको नहीं है। ये जो स्पीकर है उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज का बड़े अच्छे से पता है। लेकिन जो की पजल इज हाउ स्पीकर्स कम टू नो दीज रिस्ट्रिक्शंस, इसको पता कैसे करें, ये सीखता कैसे है, कैसे पता चलता है? इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। एक्सप्रेशंस दैट वायलेट दोज रिस्ट्रिक्शंस आर नॉट प्रेजेंट इन द इनपुट इंडिकेटेड एज सच। ये एक कॉम्प्लेक्स काम है। तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है भाई? हिंजन बोलते हैं द मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, कुछ लिमिटेशन भी है उसकी। यूनिवर्सल ग्रामर हैज नो कोहेरेंट फॉर्मुलेशन एंड इज इंडीड अननेसेसरी। इसको क्या करते हैं हिंजन जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कोई कोहेरेंट थियोरी प्रस्तुत नहीं करती है। यूनिवर्सल ग्रामर इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद बायोलॉजी, इट कैन नॉट हैव इवॉल्व्ड बाय स्टैंडर्डली एक्सेप्टेबल नियो डार्विनियन इवोल्यूशन प्रिंसिपल्स। भी जो डार्विन की जो थियोरी है, थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक में वो देते हैं कि उससे जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट टोटली अलग है, ऐसा हिंजन मानते हैं। तो देयर आर नो लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स। यूनिवर्सल ग्रामर इज रिफ्यूटेड बाय अबंडेंट वेरिएशन एट ऑल लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन विच लाइज एट द हार्ट ऑफ ह्यूमन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज। यानी कि हिंजन जो है ये
जो लॉजिक दिया है नोम चोम्स्की साहब ने उससे सहमत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये नोम चोम्स्की का जो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट था उसको समझने की कोशिश हमने की है। तो प्लीज लाइक द वीडियो, share the video, and if you are new on the platform तो please subscribe the channel. Thank you.